Good morning, everyone. So, in the last class, I introduced the basic idea of inverse trigonometry, and then after graphical representation, the graphs of these inverse trigonometric functions, we also did talk about the principal value solutions. In today's class, I am going to consider few very important formulas related to inverse trigonometry. Please make a separate list of all the formulas, and that should always begin with the trigonometry formulas which you already done in grade 11th, because those formulas will be again used not only here but also further in further topics as well. So this is the table which is the basic requirement we already have discussed, and in fact the problems based on it, as highly recommended. Learn it carefully after understanding. Then we also considered the following formulas. Just quickly I'm showing it to you, and somewhere you will find some comma is missing, so that is pretty obvious. You can always understand that. Never show the calculations like this कि sin inverse से sin cancel हो गया. So this is absolutely absurd and wrong. Do remember this. Then sin inverse 1 by x is cosecant inverse x, and the condition, the restrictions on the values of x, what it can choose, that is again very important to remember. Check it out, the changes in the following formulas. Likewise, cos inverse of minus x, that would become pi minus cos inverse x for all x belongs to -1 to 1. Now, these are the new formulas for your reference. As in 10th, we have studied sin square x plus cos square x is 1. In case of inverse trigonometry, in fact, we have a similar formula, और वो क्या हो जाता है? Sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. And condition again is important. Here x is belonging to the real numbers. Cosecant inverse x plus secant inverse x is pi by 2, wherein mod x is greater than or equal to 1. You may like to take the direct screenshot or make a note of these three formulas. Now, the few more set of formulas. Tan inverse x plus tan inverse y, that is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. But this formula holds true only if we have the product xy is less than 1. This is very important condition. Learn the formula, and that too along with the given condition. So whenever xy product is less than 1, this is the formula. But what will happen if the product xy is greater than 1? The formula will be somehow different. That such formulas generally are not considered as a part of our syllabus. You will find if you have a latest NCERT edition, they have introduced one new formula. But otherwise, generally, we never talked about those formulas. I will just mention that. So check it out. This is the reference rule. If you are able to recall this formula, that tan x plus y इसके equal होता है, then you can easily understand how you can arrive at this particular rule.
The same formula is actually pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy, और कब हो जाएगा? Whenever xy product is greater than 1. तो इस आंसर में, इस फॉर्मूला में पाई ऐड हो जाता है. अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ पार्ट्स, जस्ट वी नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड along with their conditions. Similarly, tan inverse x minus tan inverse y, वो आप इस फार्मूला जो आपने 11th में किया हुआ है, एक्सप्रेशन से थोड़ा सा रिलेट आप कर सकते हैं. वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई whenever xy is greater than -1. And when xy is less than -1, pi plus वाला फार्मूला बन जाएगा as we have done above. But in examination, you expect the questions based on generally these two only. नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल कम बेस्ड ऑन दीज टू फार्मूलाज ओनली. Now, the formula for 2 tan inverse x, and it has got three different formulas. One is in terms of sin inverse x, another is in terms of cos inverse x, another in terms of tan inverse itself. But in every case, the condition is different. So it is highly recommended that you learn the formula, but that too along with their conditions. Repeatedly मैं यही चीज बोलते जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए इस चीज को. So for every 2 tan inverse x लिखा हो, sin inverse की टर्म का फार्मूला ये हो जाएगा sin inverse of 2x upon 1 plus x square. And recall 11th में करा हुआ है ये फार्मूला, तो एक्सप्रेशन सीम्स टू बी लिटिल बिट सिमिलर. सेम वे रिकॉल क्लास 11th का फार्मूला ऑफ cos 2x and tan 2x. These 11 formulas will guide and help you how you can learn these formulas also. The proofs for few of the formulas are already given in your NCERT book. Those who are interested, they can check that out. Take a screenshot or make a note of these three formulas quickly. Based on this, let us now start with a simple exercise 2.2. Prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse of 3x minus 4x cube. And some condition is also given. I'll talk about that as well. सबसे पहली बात, we will be using the method of substitution. Very soon you will realize for solving almost 80-90% of the questions in inverse trigonometry, the suitable approach is the substitution. Now, what type of a substitution we have to do, that we will learn in due course of time. पहला काम, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, द क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा. अब बेनिफिट देखिए क्या होगा. एक तो इससे थीटा कितना आ जाएगा, याद रखिए अगर हम एग्जिस्टेंस की बात कर चुके हैं तो ये साइन इधर आ जाएगा, और इधर आने का मतलब इट विल बी टेक द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स, सो दैट थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स. व्हाट विल हैपन टू माय आरएचएस, ये आरएचएस है हमारा,
ये ले लिया और पुट कर दो x की जगह साइन थीटा, तो ये लिखा जाएगा। x की जगह जब आप साइन थीटा रख देंगे, एंड रिकॉल इनसाइड द ब्रैकेट it is the formula of sin 3 theta। साइन इनवर्स से साइन कैंसल, लॉजिकली दिस इज 3 थीटा, और थीटा कितना था, साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दिया, एंड दिस इज नथिंग बट आवर LHS। RHS is equal to LHS, hence proved। Now, what is the role of this given condition here? एक बार इसे थोड़ा सा मैं ध्यान से बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। दो एग्जामिनेशन में ये सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में CBSE लेवल पर एटलीस्ट one need not to be very much worried or concerned about the given conditions, but yes, if you are preparing for the IIT or other entrance examination, they are important। तो मैं बेसिक आइडिया लूंगा, नॉट मच इन डिटेल। इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये गिवन था x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ। व्हाट डज दैट मीन? दैट माइनस हाफ इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू हाफ। नाउ व्हाट इज x? x तो हमने अज्यूम किया था साइन थीटा, तो x आ जाएगा यहां पर साइन थीटा, और इससे मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ से लेकर, सिंपल वर्ड में आपने टेकिंग साइन इनवर्स होल ले लिया है, यहां पर ये आ जाएगा। और याद रखिए ये हम बाद में वैसे स्टडी करेंगे, साइन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, जैसे यहां है। cos x जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। और उसकी वजह से, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, लेस देन का ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो सिंपल है, लेस देन और इक्वल टू सेम रहा। अब व्हाट इज द फॉलोइंग वैल्यूज, अगर आप ध्यान से सोचें तो मैं इन वैल्यूज को थोड़ा लिखता हूं। यस, साइन इनवर्स ऑफ माइनस होता है माइनस साइन थीटा, और साइन इनवर्स ऑफ हाफ हमें पता है होता है माइनस पाई बाय 6। ये पाई बाय 6 हो गया ये। सो थीटा जो है मेरा लाई कर रहा है माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6। यहां कितना था एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 थीटा, आप 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा। क्या जस्टिफाई कर दिया, ये एंगल बिलोंग कर रहा है मेरी प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। प्रिंसिपल ब्रांच में अगर ये एंगल लाई करता है, तभी तो हमने सीखा था कि लॉजिकली हम साइन इनवर्स काट सकते हैं। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए इसके बाद ये स्टेप एक्चुअल में आया है। तो बिहाइंड द स्क्रीन एक्चुअल में ये लेफ्ट राइट साइड पे जो मैंने कंप्लीट शो किया है, ये प्रोसेस होता है। बट इवन इफ वी डू नॉट शो दिस, बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, CBSE में यू विल गेट फुल मार्क्स। बट दोज हु आर इंटरेस्टेड दे नीड टू अंडरस्टैंड जो मैंने पूरा दिखाया है यहां पर, ये सब चीज। व्हाट अबाउट से कॉस की अगर मैं बात करूं, तो वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्विकली चेक दिस आउट। व्हाट सब्स्टिट्यूशन डू यू एक्सपेक्ट हियर, एनीवन? क्या सब्स्टिट्यूशन करा जाए?
मुझे तो आता ही है। पुट एक्स को कॉस थीटा, थीटा इससे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। कंसीडर करा मैंने आरएचएस, और आरएचएस में जब हमने एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया कॉस थीटा, नोट दैट दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला फॉर cos 3 theta learned in grade 11th. Again, लॉजिकल कैंसिलेशन, 3 थीटा आ गया और थीटा की जगह रख दिया हमने cos इनवर्स एक्स। यू आर रिक्वायर्ड प्रूफ। अब यहां पर ऑफ कोर्स फिर इस कंडीशन का रोल रहा होगा, तो वो आप अपने आप चेक करिए। अगर ये आपको गिवन है, एक्स कितना था, cos थीटा, और मैंने बताया cos इन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बस यहां पर बदल जाता है, इतना चेंज आता है। cos इनवर्स हाफ कब होता है, π/3, और 1 कब होता है, 0 के ऊपर। मुझे चाहिए 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और रिवर्स करके लिखूंगा तो ये चीज ही आ रही है। इन अदर वर्ड 3 थीटा मैंने शो कर दिया, ये बिलोंग कर गया मेरी प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस थीटा। कॉस की यही होती है, हम देख चुके हैं, कॉस इनवर्स की, सॉरी। तो 0 से पाई में आ गया, इसीलिए मैं यहां ये लॉजिकल कैंसिलेशन सोच सकता हूं, विच प्रूव्स द रिजल्ट। Based on the direct formula what we already have seen, for tan inverse x plus tan inverse y, we are to prove this result. So check it out. ये फार्मूला हम देख चुके हैं, बट याद रखिए दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 1। तो ये कंडीशन भी जरूरी है यहाँ। तो मैंने क्या चेक करा इनिशियली, इनका प्रोडक्ट, और वो है 7 अपॉन ये 2 पे कटा 12, 11 इंटू 12। आंसर से हमें मतलब नहीं है, वी कैन इजिली ऑब्जर्व कि दिस इज लेस देन 1 क्लियरली। कंडीशन सेटिस्फाई, अप्लाई दी फार्मूला। सो tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेक द LCM एंड सिंप्लीफाई। लोएस्ट फॉर्म में ले आए, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांटेड टू प्रूव। Check out this question. Prove the following result. 2 tan inverse half plus tan inverse 1/7 आपको गिवन है। Very first thing, observe that यहाँ 2 tan inverse x है, तो 2 tan inverse x का फॉर्मूला ये रहा, राइट। अप्लाई दिस फॉर्मूला, अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो दिस विल बी 2 इंटू हाफ आ गया 2x, x की जगह हाफ रख दो बस इस फार्मूला में, एंड नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
1 माइनस हाफ का स्क्वायर आ गया, ये लिखा गया, ये एज इट इज। बस इसके बाद फर्स्ट वाले को एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, चेक इट आउट, वो इसके इक्वल आ गया। और अब ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इसमें फिर से चेक कर लो इन दोनों का प्रोडक्ट, क्लियरली दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 1, इसीलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई दिस फार्मूला ओवर हेयर, tan इनवर्स में सिंपली वो आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। Take the LCM and simplify. This will prove the result. I hope the basic idea is clear. Now, substitution for the simplifications. This is very important table which I am showing you now. For inverse trigonometry, let's say you are given with, or you can get some expression like a square plus x square. In such situation, put x is equal to a tan theta. And if the expression is like a square minus x square, put x को a sin theta. For x square minus a square, put x को a secant theta. For the expressions involving say root of 1 plus x हो या 1 माइनस एक्स हो, ये आपस में डिवाइड में हो एक दूसरे के, पुट x को cos 2 थीटा। एंड इफ इट इज से एक्सटेंशन है ऊपर वाले की, इफ इट इज से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑल टुगेदर इन द सेम क्वेश्चन, देन एक्स स्क्वायर को रख दो cos 2 थीटा, ताकि वो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिजेंबल कर जाएगा, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से। नाउ देयर आर फ्यू अदर थिंग्स। आप यहां पुट x को 8 tan थीटा जो मैंने बताया है, यू कैन ऑल्सो पुट x को a cot थीटा। सेकेंड वाले में आप पुट कर सकते हैं x को a cos थीटा, और थर्ड वाले में पुट कर सकते हैं x को a cosecant थीटा। इसमें आप पुट कर सकते हैं x को cos थीटा। But to avoid half angles, I would prefer to substitute cos 2 theta. And generally you will find tan theta हो या sin theta या secant, हम इनकी टर्म्स में ही प्रेफर करते हैं, इसीलिए I will make use of it. tan, sin और secant वाले सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो मैंने ये लिया है, अब आप इसका एक पर्टिकुलर केस देखिए। when a is equal to 1, तो चेक इट आउट। मैंने बताया है आपको पुट करना है x को a tan theta. What will happen if a is 1? तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x a की जगह 1 रखो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर एक्सप्रेशन दे दिया, तब सीधा आपको पुट करना है x को a tan theta. सिमिलरली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास मान लीजिए होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ a की जगह 1 कर दिया, तो a को 1 कर देंगे, तो इस केस में पुट करेंगे x को
sin theta, and so on. Why this substitution works? तो फर्स्ट वाले का मैं एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं. आपके पास एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने पुट करा है एक्स को ए टैन थीटा. एक्स की जगह लिख दो ए टैन थीटा. ए स्क्वायर कॉमन एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया. रिमेंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर. सो व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन, जो ये दो टर्म्स थी अलग अलग, ये बाइनोमियल था पहले, ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाइनोमियल था. मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया मोनोमियल में इन अ सिंगल टर्म. तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने का बेनिफिट अब ये आगे हमें पता चलेगा when I will take up the questions. So please make a note of the following substitution table को नोट कर लीजिए ध्यान से, very very important. Check out the following question. अब substitution based चेक करिए. राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जैसे ही एक्सप्रेशन इतना बड़ा सा दिया है ना, tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं? चेक दिस आउट. लुक एट द एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखते ही व्हाट सब्स्टिट्यूशन आई हैव मेंशन्ड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे ही मुझे दिखाई दिया, पुट एक्स को tan थीटा. व्हाट विल हैपन टू माय एक्सप्रेशन? एक तो इससे अब ये क्विक प्रैक्टिस बन जाएगी. थीटा लिख दोगे आप tan इनवर्स एक्स. So this expression will become, check this out, बस x की जगह मैंने tan थीटा रखा है. वन प्लस tan स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर थीटा और उसका रूट है सीकेंड थीटा आ जाएगा. चेंज इनटू साइन एंड कॉस, एलसीएम. और अब इसे देखिए आप फर्दर, 11th क्लास में हम ऑलरेडी ये फॉर्मूलाज कर चुके हैं. 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा. साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. और इनके फिर हमने हाफ एंगल कन्वर्जन्स भी सीख लिए थे. व्हाट डज दैट मीन्स? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. ऐसे ही साइन थीटा का हाफ एंगल क्या हो गया? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. तो विद प्रैक्टिस यू विल रियलाइज कि ये सारे 11th के फॉर्मूलाज कब और कहाँ यूज करने हैं. बस एक साइन से साइन कैंसल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, एंड लॉजिकल कैंसिलेशन will give me the answer as theta by 2. और थीटा बाय 2 है तो थीटा कितना था सबसे ऊपर? tan इनवर्स x. तो बस अब आप इसका हाफ कर देंगे तो ये आ गया हाफ ऑफ tan इनवर्स x. तो नोट केयरफुली, जो मेरे पास अभी तक इतना बड़ा एक्सप्रेशन था
it is nothing but simplified to only half of tan inverse x, which gives me the final answer. But at the same time understand its application. जो अब हम फर्दर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की बात करेंगे, वहां पर क्वेश्चंस क्या दिए जाते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस या इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो उस केस में अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखने लग गया यूजिंग द फार्मूलाज, इट विल बी वेरी वेरी टफ कैलकुलेशंस। इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट कर भी नहीं पाएंगे अनलेस आई कन्वर्ट दिस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रेट करना है, इन ऑल सच पॉसिबल केसेस एंड सिचुएशन रिड्यूस दिस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ तो चलो इस एक्सरसाइज में बता दिया है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, बट जब ये क्वेश्चन सिमिलर कन्वर्ट होगा इन अदर चैप्टर्स, इट विल नॉट बी मेंशन्ड कि आपको पहले सिंपलेस्ट में लाना है और फिर सॉल्व करना है। तो आपको लॉजिकली ये अपने आप सोचना होगा कि मैं इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ये सब करने के बाद I will bring it to the simplest form and then I will use the formula for integrating it. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट रिड्यूस करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। Check this out. Another very simple question. बस आइडेंटिफाई दी एक्सप्रेशन, और मेन मुझे क्या दिखा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और चेकआउट द सब्स्टिट्यूशन लिस्ट। अगर आपने नोट किया है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उस तरह के केस में एक्स को पुट करते हैं सीकेंट थीटा, थीटा आ जाएगा सीकेंट इनवर्स। ये मेरा क्वेश्चन है, एक्स की जगह सीकेंट स्क्वायर लिख दिया, एक्स की जगह सीकेंट लिख दिया, और अब सोचिए सीकेंट स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यस, 1/tan हो गया कॉट। और अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पाई/2 माइनस थीटा। यस, आप ध्यान से सोचिए, अंदर जो कॉट थीटा है वो 10th का फार्मूला मैंने यूज कर लिया, tan 90 माइनस थीटा, लॉजिकल कैंसिलेशन, पाई/2 माइनस थीटा, और थीटा कितना था, सबसे पहले स्टेप में देख चुके हैं, सीकेंट इनवर्स एक्स। Yes, check out this question. Write the following in the simplest form. Direct formula of half angles. Recall this quickly. 1 minus cos x आपको अलग से कहा गया था कि याद कर लो, 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ये आ जाएगा, ये tan में चेंज हो गया, लॉजिकल कैंसिलेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, दैट्स इट, योर आंसर। Check out this question. जो tan इनवर्स के अंदर एक्सप्रेशन है,
11th में इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर चुके हैं। एनीवन, क्या करना होता है ऐसे में? Dividing by cos x. यस, गुड। डिवाइडिंग बाय cos x। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करा, ये लिखा जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो गया। और tan पाई बाय 4 मुझे पता है वो 1 होता है, तो 1 की वैल्यू कहाँ कहाँ रिप्लेस करते थे ये भी ध्यान से देखिए। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, और इस tan को आप मल्टीप्लाई मान लेंगे 1 से, ताकि मैं इस 1 की और इस 1 की वैल्यू यहां पर लिख दूं। क्यों किया ऐसे? दिस विल गिव मी tan x माइनस वाई का फॉर्मूला इनसाइड द ब्रैकेट, जो हो जाएगा tan a माइनस बी। लॉजिकल कैंसिलेशन, द आंसर इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो अगर आपसे इसका डेरिवेटिव पूछा होता, जो ऊपर से एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आपको पता है कितना है डेरिवेटिव इसका? -1. इट्स -1, राइट। यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट्स, तो आपने डेरिवेटिव शायद पहले करा हो थोड़ा बेसिक, अदरवाइज इवन इट हार्डली मैटर। डेरिवेटिव या इंटीग्रल करना भी होता तो ऊपर की जगह में नीचे वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालता। चेक आउट दिस क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। Write the following in the simplest form. Looking at a square minus x square. Exactly हम देख चुके हैं। Put x को a sin theta। ये याद रखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, नो चॉइस। इससे एक तो इंपॉर्टेंट है, sin थीटा आ जाएगा x बाय a, और थीटा वुड बी sin इनवर्स ऑफ x बाय a। Consider the given expression। x की वैल्यू रख दिया a sin थीटा, नीचे से a स्क्वायर कॉमन है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट आ गया था, विच विल बी सिंपली a cos थीटा, विच सिंप्लीफाइज टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, लॉजिकल कैंसिलेशन, और थीटा कितना था? साइन इनवर्स x बाय a, which is your required expression in the simplest form. So you will be able to arrive at the last step provided आपको पहला स्टेप बस याद रहे। That is very very important. आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन और कब सब्स्टिट्यूशन करना है, that is very very important. So this question for your homework, 10th question, you just need to quickly check it out. You will have the fair idea. Put x को a tan theta. Why it will work? Check out quickly, but do it in your homework by yourself. Put x को a cot tan theta, replace कर दिया। अब अगर आप अंदर ध्यान से देखें, a क्यूब कैंसल, फार्मूला मिलेगा tan 3 थीटा का, लॉजिकल कैंसल दे देगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दूंगा मैं tan इनवर्स ऑफ x बाय a। So that way you will be getting your required answer. Okay, so that
is all for today's class. Any doubt to anyone?